ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। अब मैं कौन उपाय करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, भव निद पार पारों। अब मैं कौन उपाय करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, भव निद पार पारों। जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरों। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तारों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पस ज्यों उदर परों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पतित तारों। जतन बहुत मैं कर रहियो, मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख लिहो भगवान। दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख लिहो भगवान। डंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दे अस्थान ते बाबा हनुमान सिंह जी दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित अज प्रभात तो लैके हुण तक इस गुरमत समागम अंदर कीर्तन, कविशर वीरां तो कवितावां, ढाडी गुरसिखा तो इतिहासिक वारां और हुणे ही गुरु रामदास जी दे दर दे कीर्तनीए भाई जुझार सिंह जी अमृत बाणी कीर्तन सरवण करा के गए ने। आओ
ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਐਕਟਰ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਹਜ਼ੂਮੇ ਅਸਤ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਤ, वो ही ਹਜ਼ੂਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਠ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਉਹ ਸੰਜੋਗ, ਉਹ ਸਬਬ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਸ਼ ਦੇਖੋਗੇ
कोशकार जिहड़ा वो दसेगा ये शब्द अरबी दा है, ये फारसी दा है, ये बंगाली दा है। जिस भाषा विच ओदी जड़ है वो दसेगा, फिर कहेगा भी ये अर्थ ये कीते जांदे आ। पर गुरु ग्रंथ साहिब भाषा के आधार पर नहीं, वो सीधी परिभाषिक उदाहरण देंगे भी परिभाषिक अर्थ वो करनगे। जिवें मैंने शब्द वरत्या जी गुर, गुरु, सत गुरु, ये शब्द पढ़ने तो गुरु आवाज़ ठीक सी भाई साहब, क्योंकि मेरी आवाज़ उच्ची होने लग पैनी है। हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी च हुण मान लो शब्द है सतगुरु या सतगुर, तो असी जदों गुरु ग्रंथ साहिब चो दर्शन करांगे तो महाराज दे अर्थ सच्चा गुरु नहीं करनगे, सतगुरु दे अर्थ करनगे सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसका संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ। जिन्हें सतपुरख परमात्मा नूं जान लिया। उस तो बाद असी जे गुरु दे शब्द दे अर्थ पढ़ांगे तो महाराज सानू वो भी अर्थ दे देंगे, वो भी परिभाषिक रूप दे विच सतगुरु अर्थ बख्शणगे। जिवें असी पाठ करांगे नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मुहतार है। गुरु ऐसा ਜਾਂ पाठ करांगे गुरदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक त्यों लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए। जेडे सज्जन बाणी पढ़ते जी उन्होंने तो कथा पैनी है कि खिंच समझ। हाँ, कई बारी जदों बाणी का अभ्यास नहीं ना हुंदा जी तो सालां बद्धी साडा समा निकल जाता है। क्षमा करियो, असी साखी नूं, गाथा नूं, कहानी नूं ते करंट जेरे मसले ने उन्होंने बड़ी तवज्जो दे के सुनने हैं। हालांकि वो मसले सदा चिर नहीं रहिंदे, उन्हां दी म्याद बिल्कुल छोटी हुंदी है। पर जे सदैव किसी ने रहना है तो केवल गुरु के शब्द ने ही रहना है। सदैव गुरु शब्द है तो शब्द वास्ते अभ्यास चाहिए। मैं अर्ज की देखो हुण थोड़े शब्दों च हो गया गुरु कौन। एक दो उदाहरण हुण देखो, जे पुछिए महाराज सानू सीधा दसो मुसलमान कौन, तो असी बाहरों लभन लग पांगे। जिहड़ा कुरान नूं मनदा है, हज़रत मुहम्मद साहब नूं मनदा है, जिहदी सुन्नत है, जिहड़ा रोज़ा रखदा है, 5 वक्त दा नमाजी है, जिहड़ा हज ते भरोसा रखदा है। तो जे गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछांगे तो महाराज पूरी ओदी मसीत नमाज की गल करदियां परिभाषा देणगे मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हाका हलाल कुरान शर्म सुन्नत सील रोज़ा हो मुसलमान। हुण देखो ये सब कुछ आ गया। ओदी जिहड़ी शरह है ना वो विच आ गई है। मसीत आ गई, मुसल्ला आ गया, नमाज आ गई, ओदी सुन्नत आ गई। इत्थे भी महाराज ने अर्थ दिते। तो जे कहिए महाराज सानू एक तुक च दसो मुसलमान, तो महाराज कहते हैं मुसलमान मोम दिल होवे। मुसलमान होवे जिहड़ा मोमबत्ती की तरह बल के अपने आप नूं पिघला के दूजियां नूं चानण दिंदा है। एक तुक च अर्थ हो गए। हुण मान लो शब्द है ब्राह्मण, मैं गल कुछ होर करनी अज। शब्द है ब्राह्मण, असी जदों वर्ण की गल करने 4 वर्णां विचों एक वर्ण है ब्राह्मण। पंडित नहीं, पंडित विद्वान है, ब्राह्मण वर्ण है। जे कोई पूछे सानू ब्राह्मण कौन, जे तुसी वर्ण वंड मुताबिक पूछना है तो वह दस देंगे भी जिहड़ा जनेऊ पांदा है, तिलक लांदा है, जिहड़ा ब्रह्म कर्म करदा है। तो गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछोगे ब्राह्मण कौन, तो महाराज कहेंगे कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कईयत है हमारा। जिहड़ा परमात्मा दी ब्रह्म दी विचार करदा है वो ही ब्राह्मण है। जे कोई पूछे जी पंडित कौन, बाणी च हर शब्द के 2 अर्थ ने। एक उहदा नैगेटिव पक्ष भी है तो एक उहदा पॉजिटिव भी है कि उस शब्द थल्ले जिहड़े पाप कर रहे हैं वो भी गुरु साहब दसणगे असलीयत की है। जिवें हुण शब्द है पंडित, उंज गुरबाणी च ज़्यादातर जिहड़ा उचारण है वो पंडित ही है। महाराज ने जिहड़ा डड्डे नूं सिहारी लाई वो बोलनी है, पंडित नहीं केवल पढ़ना। महाराज कहते सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। देखो पंडित की परिभाषा दे दी। मेरे कहने तो मुराद बेअंत बचन ऐसे ने जिस विच डिटेल दी थां
सतगुरु संखेप जिहा सानूं समझा दिंदे ने। अज जदों कोई बुलारा बोलदा है, किसी अनमत वाले नूं गल समझाना चाहता है भी सिੱਖੀ की, तो वह 3 गल्लां करदा है कि गुरु साहब ने सानूं समझाया किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। बड़े संखेप जिहे शब्द ने भी किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। 3 गल्लां च सारी सिੱਖੀ आ जाती है। अगली बेनती, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने नदेड़ की धरती ते अपने इस 5 भूतक चोले नूं सतगुरां ने संकोचिया है, समेटिया मैं शब्द वरतां। उस वक्त हजूर ने बहुत बचन कहे। इत्थों तक 52 शब्द महाराज जी दे बड़े प्रचलित ने। सिख एक एक बचन जिहड़ा उहनूं मनदा है। उह साडे विद्वान कहंदे ने हजूर ने जान लग्या जिहड़े बचन बिलास कीते ने, उन्हां विच 3 गल्लां विच सारी सिੱਖੀ बन के रख दित्ती है। मैं तां कहा जी मैं संखेप जी गल करनी, पर वह डिटेल बहुत होगी। तुसी सब नूं पता, मैं बोलांगा तुसी सब ने बोलना। वो 3 गल्लां च 3 बचनां च गुरु गोबिंद सिंह ने सब कुछ दे दिता। गुरु नानक साहब तो लैके अज तक वर्तमान जिन्नी देर तक दुनिया रहेगी, वो 3 बचन हमेशा ही लागू रहेंगे। वो पहला बचन है पूजा अकाल की। ये शब्द सामने पहला बचन क्या भी अकाल दी पूजा करनी है। दूसरा बचन क्या परचा शब्द का। तीसरा शब्द क्या दीदार खालसे का। चलो लफ्ज बड़े थोड़े जे 6 शब्द बने अखर सारे जी शब्दां दा अखरां जोड़। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। इन्हां 3 शब्दां च सारे गुरु ग्रंथ साहिब दा सिद्धांत है। इन्हां 3 शब्दां विच गुरु गोबिंद सिंह दे सारे रहतनामे ने। इन्हां 3 शब्दां दे विच गुरु नानक साहब तो लैके रहिंदी दुनिया तक सिੱਖੀ दी फिलॉसफी इहदे विच कायम रहेगी। पहली मेरी बेनती सुनियो, आपां एक एक शब्द लांगे जी। पूजा अकाल की। हुण लफ्जी अर्थ पूजा दे कई तरह दे ने, जिवें अपने इष्ट नूं प्रसन्न करना। उंज वैसे कोशकार पूजा का अर्थ करते हैं सत्कार, अदब, सन्मान करना। हुण कई सज्जन पूजा की समग्री लिया के बाहर मुखी पूजा भी करते हैं। मैं बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहब जदों पूजा की गल करते हैं, असी पूजा अकाल, लवि ध्यान नाल मेरा सुनियो। एक शब्द है काल, काल का अर्थ है मौत। एक शब्द काल का अर्थ है समा। उंज सतगुरां ने 10वीं दी बाणी विच परमात्मा लई भी काल शब्द की वरतों की है। सर्व काल की रक्षा हमने। मैं बेनती करा, जिहड़ा शब्द काल है, पूजा अकाल की। सुनियो गुरमुखो इस बेनती नूं, जिथे गल नहीं समझ पैंदी मैं रिपीट करांगा, उकतायो ना, क्योंकि कई बार इहो जिहा विशा खुश्क जिहा हुंदा है ते सज्जन कहंदे कोई गल स्वाद नहीं आया। पर इन्हां 3 गल्लां नूं जे रब अंदरों सोझी दे दे, ये 3 बचन ही सिੱਖੀ दी महान व्याख्या ने। पूजा किस नूं मनना है, सन्मान किदा करना है, पूजा किदी करनी है। सतगुरां ने शब्द वरत्या अकाल की। पहला 3 दे सी अर्थ करने। अकाल, काल दा अर्थ मैं किता टाइम, बाणी च आया काल अहेरी फिरै बदक जो, उथे काल दा अर्थ है मौत। एक बाणी शब्द होंदा कबीर काल करंता अबै कर, अब करता सोताल। उथे काल दा लफ्जी अर्थ है कल, आने वाला, फ्यूचर, जिहड़ा कल आउणा है। इत्थे शब्द है काल, काल दा अर्थ है समा, काल दा अर्थ है मौत। क्योंकि समा ही तो मौत की झोली च पांदा है। जिहदे ते समा लागू है मरेगा वही, क्योंकि समय विच जन्म है, समय विच जवानी है, समय विच बुढ़ेपा है, टाइम दे विच मौत है। इत्थे सतगुरां ने शब्द वरत्या अकाल। अकाल दा अर्थ है टाइमलैस, जिहदे उत्ते समय का कोई प्रभाव नहीं। ना उहदा जन्म है, ना उहदा बचपन है, ना उहदी जवानी है, ना उहदे ते बुढ़ेपा आउणा है। गुरमुखो दे ते कोई समा लागू नहीं हुंदा। इसे करके हजूर ने जदों मूल मंत्र एक ओंकार दे बेअंत गुण जिहड़े ने उन्हां नूं संखेप करके दस्या, ते एक शब्द सतगुरां ने वरत्या अकाल मूरत। मैं सिर्फ पहलां दे 3 दे अखरी अर्थ कर रहा जी। अकाल मूरत
अकाल दा अर्थ किया जिहदे ते समा प्रभाव नहीं पांदा। मूर्त दा लफ्जी अर्थ ते चित्र ने, क्योंकि परमात्मा दी कोई तस्वीर नहीं बना सकता कि चित्रंग बहीने के एक है अधीने, तेरा कोई चित्र नहीं। इत्थों तक जिमें कोई पत्थर दी मूर्ति नूं स्थापन करे, गुरुमत कहती है नहीं, रब नूं मूर्तियां दी तरह स्थापन भी नहीं किया जा सकता। थापिया ना जाए कीता ना होए, वो किसी का कीता होया थोड़ा है कि आज मूर्ति नूं स्थापन करना। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। गुरमुखो ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो, मैं शब्द वरत्या अकाल मूरत। इत्थे मूरत दा अर्थ है होंद। फिर बेनती सुनियो, मूरत दा अर्थ ते तस्वीर नहीं, इहदा अर्थ है होंद। अकाल मूरत वो समय से परे है, उहदे उत्ते टाइम लागू नहीं हुंदा। पर मत समझो जिहड़ी चीज़ समय तो परे वे परमात्मा है ही नहीं। मूरत दा अर्थ है होंद, वो टाइम लैस है पर है जरूर। फिर अर्ज है, इसनूं जे पढ़ना होवे, जे अकाल शब्द नूं पढ़ना है तो जप दा पहला बचन ही अकाल है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो तो समा को लागू हुंदा है। जदों जुगाद सच कह दिता ना, इन्हें अकाल की व्याख्या कर दी। जुग दा अर्थ टाइम समा, जिवें कल जो अचार जो कहने, जुगाद वो जुग के आद से भी सच है। फिर बेनती, वो जो समा नहीं सी बनया, मैं एक बार अर्ज की अजकल टाइम तो बहुत साइंस खोज कर रही। जेडे बच्चे पढ़ रहे उन्होंने पता होना, स्टीफन हॉकिंग पैरालाइज बंदे नूं होया, अब पिछले सालों च उहदी मौत हुई। उन्हें एक छोटी जी किताब लिखी है, द ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम। टाइम की जिन्हें ब्लैक होल की गल की। खैर ये पढ़िया लिखिया का विषय, आप कोई इधर नहीं, कोई मेरा कोई सब्जैक्ट भी नहीं। समय जदों समा नहीं बनया, वो समय अधीन नहीं। जदों समा नहीं बनया उस तो पहला भी सी, ते जिदन सारा समेट जाएगा समा, ओदी होंद ने फिर भी रहना। इस करके वो अकाल है। महाराज ने किड्डी वड्डी गल दी, अकाल मूरत। पूजा अकाल की यही कारण कि साडे विच जदों किसी का चलाना हुंदा है। वैसे मौत शब्द भी गुरबाणी ने मन्निया, मरना शब्द माड़ा नहीं। मैं रात ही कथा जलंधर करके आया तो मैं क्या सी, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च शहीद लफ्ज सिर्फ 2 वारी आया है, बाकी किते शहीद लफ्ज नहीं आया। शहीद लफ्ज अरबी का है, अरबी विचों पंजाबी च आ जाता है। शहादत भी अरबी का है, तो शहीदी लफ्ज असी पंजाबी च घड़ लिया, असल च शहीदी लफ्ज अरबी च नहीं हैगा। क्योंकि जो भाषा शब्द किसी का उधारा लेंदी है ना, पर उहदे शब्दां नूं अपने रूप दे देंदी। वेखो मैं एक उदाहरण होर दे के, कोई एक क्लास नहीं किसी प्रोफैसर दी, पर मेरी इच्छा है भी जो सतगुरु समझाते हैं। हुण तुसीं एक शब्द पढ़ दिओ, पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साध न मारीए। इस एक तुक आउंदी है, पढ़िया अतै ओमिया। हुण ये लफ्ज अरबी का है, ये शब्द है उम। मैं एक बार इसकी कथा करदे क्या सी कि हर विद्वान ने ओमी का लफ्जी अर्थ किया अनपढ़ जाहिल, जिन्हों एक अखर भी समझ नहीं, वो ओमी है। पर पूर्व विच ते अज्ञानी कह सकने हैं। जाहिल शब्द भी मैं फारसी का वरत्या, जिन्हों कोई समझ नहीं उन्होंने अज्ञानी कहांगे, अविद्या विच फसिया है। ये लफ्ज दरअसल अनपढ़ है, ये अर्थ सारे किते अनपढ़, जिन्हों कोई समझ नहीं। पर गुरमुखो असल च ये शब्द अरबी चो गुरु ने पंजाबी च काट दिता। शब्द है उम। उम मीनस अरबी विच जिवें अम्मा के फारसी च अम्मा बन गया, अरबी विच कहते उम। उम मीनस माँ। ओमी का अर्थ है कि जिस बच्चे का जन्म होया ते जन्म तो बाद बाप की मौत हो जाए, सारी जिंदगी माँ एक अखर भी ना पढ़ा सके, निर अखरा अनपढ़ रह जाए, उन्होंने कहते ओमी। यदा मतलब जिहो जिहा माँ के ढिड चो जम्मिया इहो जी कबर भी चला गया है। हुण देखो शब्द कित्थों दा है, महाराज ने किहो जी कमाल की। मैं फिर बेनती करांगा, शहीदी लफ्ज पंजाबी विच असीं बनाया, अरबी विच शहीद ते शहादत ने। मरना शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च मन्निया, पर साडे च असीं 2-3 शब्द वरतने। असीं कहने फलाना सिंह चढ़ाई कर गया, यही कहने हैं ना। चलो अजकल तो अंग्रेजी वरतते हैं ना जी,
फलाना चढ़ाई कर गया। एक साडा शब्द होरे जी, फलाना सिंह ना अज अकाल चलाना कर गया। कभी सोचा शब्द क्यों वरतते ने सिख? अकाल चलाना कर गए, चढ़ाई कर गए। ये दो शब्द बड़ी चढ़ती कला वाले ने। चढ़ाई करन दा मतलब है कि जेड़ी मौत सारियां ते चढ़ाई कर दी है, खालसा जी मौत उत्ते चढ़ाई कर गया है, मौत ते फतेह पा गया है। दूसरा शब्द अकाल चलाना कर गया। काल विच जन्म होया, काल विच जवानी आई, काल विच बुढ़ेपा आया। इस काल विच रहिंदियां रहिंदियां अकाल दी इन्नी बंदगी कीती, सच है वो उत्थे चला गया जिथे हुण समय दा असर भी कोई नहीं होना। जिन्हों आपां बाणी च कहने नानक बद्धा घर तां जिथे मिरत ना जन्म जरा। आप थोड़ा जा ध्यान दिया जे मेरी बेनती वल। पहला गुरु जी ने क्या पूजा अकाल की, जिहड़ा समय तो पार है, जिहदा अंत कोई नहीं। उस तो बाद दूजा शब्द है, जे मैं दी व्याख्या करनी पूरी। दूजा शब्द है परचा शब्द का। परचे का अर्थ बहुत ज़्यादा ने। जे कोश देखोगे परचे का अर्थ समग्री, परचे का अर्थ ढेर लाना, परचे का अर्थ संग्रह करना। तो परचे का एक लफ्ज ये भी है कि कागज़ का टुकड़ा, परचा। पर जेड़े इत्थे अर्थ करांगे परचा शब्द का, इत्थे परचा का अर्थ परिचय। हिंदी च एक शब्द है परिचय, इहदा अर्थ है जानकारी, अभ्यास। असल च परचा शब्द का सीधा अर्थ करो समझन लई कि सिखा तू किसे होर जंतर मंतर तंत्र का अभ्यास नहीं करना, खालसे ने अभ्यास करना ते गुरु दे शब्द का करना है। इहदा मतलब परचा शब्द का, शब्द का अभ्यास करना है। हुण दो गल्लां हो गईयां जी, पूजा अकाल की, तिन्ने आपस जुड़े हुए ने। परचा शब्द का, ते तीसरा शब्द मैं वरतांगा दीदार खालसे का। ये दोनों शब्द पर्शियन दे ने। दीदार शब्द भी फारसी दा है ते खालसा शब्द भी फारसी दा है। दीदार दा अर्थ है देखना, दर्शन करने। खालसा दा अर्थ है प्योर, जियों निर्मल बाहरों निर्मल। महाराज कहते ने पूजा अकाल दी करनी है। अकाल दी पूजा शब्द दे अभ्यास नाल हुंदी है। जे दीदार करने ने ना, जिदे अंदर शब्द दा प्रकाश हो जाए, ओदे दीदार करी, खालसे दे दीदार तेनू गुरु दे दीदार हो जाएंगे। तीन शब्द में वरते जी, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। हुण थोड़ी जी दी डिटेल है, क्योंकि जो पूजा की गल चलती, पिछले साल आपां इत्थे एक ओंकार की गल की सी। भाई समझते ही है ना, मैनूं याद आ गया इत्थे एक ओंकार ते बोले सन। मैनूं थोड़ा जिहा रिपीट करांगा अज फिर। जदों पूजा की गल चलती है, गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ पूजा एक परमात्मा की करन बारे कहिंदे आ। जिवें असीं पढ़ने पूजो राम एक ही देवा, पूजा कीचै नाम ध्याईऐ बिन नामै पूज ना होए। फिर बेनती है, भगत रविदास साहब जी का एक बचन है, तन मन अर्पूं पूज चढ़ाऊं गुर प्रसाद निरंजन पाऊं, जिहदे विच उन्हां समग्री का जिक्र किया है कि दुध दा, पानी दा, फुल्लां दा, चंदन दा, दूध तां बछड़ा थनों बिटारियो, फूल भवरजन मीन बगारियो। उहदे विच ओह कहंदे तन ते मन पूजा दी भेटा विच दे दिता। मैं आप नूं बेनती करां जी, अज भी, पहला भी सी अज भी बहुत सारे लोग ने जिहड़े करते दी थां ते कीर्तम दी पूजा करते हैं। इस लफ्ज़ नूं ध्यान नाल सुनियो, करता बनाउण वाला, कीर्तम ओदी बनी कोई चीज़, वो करते नूं पूजन दी थां ते करते दी किरत नूं पूजदे पिया। उंज गुरबाणी कहंदी है करता किरत दे विच वरतदा है, पर किते ने गुरु जी ने कहा तू करते नूं छड्ड के किरत दी पूजा कर। हुण इहनूं थोड़ा जिहा आपां देख लईए। पानी साडी जिंदगी का आधार है, उन्हें सानू जीवन मिलता है। कई लोग ऐसे ने जिहड़े तत्तां नूं पूजदे आ, जिवें पानी की पूजा करने वरुण देवता, मुसलमानां विच ख्वाजा खिजर, गल तां पानी दी है। कोई पवन नूं पूज रहा, कोई पानी नूं पूज रहा, कोई सूरज नूं पूज रहा, कोई चंद्रमा नूं पूज रहा है। गुरु ने सब तो पहली गल कही, बंदिया तू तत्तां नूं मत पूज, तू ओदी पूजा कर जिन्हें तत्त पैदा कीतेगा। थोड़ा जिस बेनती सुनियो, पूजा अकाल की। हुण सूरज चढ़दा पानी दे रहे, सूर्य की पूजा हो रही है। हाँ, जे सिमरन कोई नहीं, नाम कोई नहीं,
बंदगी कोई नहीं, शब्द का परचा कोई नहीं, फिर असी खंडन ना करिए, क्योंकि आपां तां खुर अज्ञानता विच मैं अपनी गल कर रहा डुबे। हुण जिहड़ा ये कहे जी मैं सूरज ते चंद्रमा नूं पूजना, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने भै विच सूरज भै विच चंद कोह करोड़ी चलत ना अंत। कहंदे जिस सूरज नूं तू पूजना पिया ये सूरज भी परमात्मा दे भै विच है। जिस चंद्रमा की तू पूजा करन चले तेरे प्लैनेट दा तेरी इस धरती का चंद्रमा है, पर सच एवे चंद्रमा भी रब दे भै विच ये परिक्रमा जिदन दे बने उदन दे चलते पे ने। करोड़ां को परिक्रमा कर चुके ने, अपनी मर्जी नाल नहीं चलते। याद रखिए उहदे भै दे विच ही परिक्रमा कर रहे हैं। मेरी मैं किसे मत नूं टारगेट बना के नहीं करांगा गल, घट्टो घट अपने गुरु की गल तां आपां करिए ना। हुण जल की पूजा उंज गुरु ने क्या, जे प्रसाद पीवै सत शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला। कमाल कर दी तिन्ना दी गल, पानी दी अग दी ते हवा दी। कहंदे ने जिहदी किरपा नाल तू पानी पी रहा, जिहदी किरपा नाल तू घर अग वरतना, जिहदी किरपा नाल तू ठंडी हवा लेना, तू अग पाउण ते पानी मत पूज, तू ओदा सिमरन कर जिन्हें तेनू दात बख्शी हुई है। पहली बेनती पूजा किरतम दी पूजा, किरत दी पूजा जो उन्हें बना दिता, उन्होंने तत्तां नूं पूजन लग पे। बड़ा सरल जिहा मैं शब्द वरते ने, ज़्यादा डिटेल च नहीं। हुण ज़्यादातर बंदे सूरज नूं पूजदे आ, चंद्रमा नूं पूजदे आ, पर मैं एक बेनती करा, सूरज हर चीज़ सिखा दिंदा है ना। सूरज दे नेड़े कोई नहीं जा सकता, किसी की कोई जरूरत ही नहीं, कोई अज तक सूरज तक गया। पर गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं मेरी गल ते भरोसा करी, सूरज नूं पूजन वालिया जे तू अकाल नूं पूजेगा उहदे विच इन्नी एनर्जी है। सूरज है तो एनर्जी ना, अग ही शक्ति। कहन लगे इहदे च एनर्जी बहुत है, पर जिन्हों तैनू पूजन लिखिया उस विच इन्नी एनर्जी है जे वो चाहे तो सूरज नूं एक खिन दे विच सुका सकता है। फिर बेनती सुनियो, पढ़ते तुसीं रोज हो जाप साहिब विच के अदित सोकै भगवती छंद। अदित मीनस दा अर्थ है सूरज, अदित दर ते सूरज, सोकै दर ते सुखाना। वो सूरज सब नूं सुकांदा है, तू ओदी पूजा कर जिहड़ा सूरज नूं भी सुका के रख दिंदा है। महाराज ने क्या पहली गल तत्व पूजा पानी दी रुखां दी हाँ संभाल करो, ओदियां दित्तियां दातां ने। फिर मेरी बेनती है जिवें सानू संतान दित्ती, धन दिता, घर दिता, उस दी वरतों करो, ओदी दात लैके पूजा सिर्फ केवल दातार दी करो। इत्थे मैं एक होर आप नूं बेनती करा, गुरु नानक साहब महाराज जी का पुरब लंघिया है। महाराज कहते जिहड़ा गुरमुख है ना ओदी बिरती होवेगी शेर वाली। बेनती सुनियो, ओदी बिरती होवेगी शेर वाली, ते मनमुख दी कहते ओदी बिरती होवेगी कुत्ते वाली। हालांकि गुरबाणी विच कुत्ता पॉजिटिव पक्ष तो भी आया है ते नैगेटिव तो भी आया। गुरु तेग बहादुर साहब ने वरतिया, सुख है खेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वार द्वार सुवान जो डोलत न सुध राम, भजन की। मनमुख बंदा, लालची बंदा इस तरह थां थां ते भटकदा जिवें लवारस कुत्ता भटकदा है। पर दूजे पासे जो भगती की गल की तो महाराज ने कहा स्वामी को गृह ज्यों सदा सवान तजत नहीं नित, नानक ए बिदखर भजो एक मन होए एक चित। जेड़ा कुत्ता वफादार है मालिक दा है, मर जाएगा गवांढी दे बूहे ते नहीं जाएगा। उदाहरण एक ही है। मैं आपनू बेनती करा, महाराज ने पूछा जी सिंह बिरती ते कूकर बिरती किवें, कुत्ते बिरती किवें? उत्थे महाराज जी ने उदाहरण जिहड़ी दित्ती, कहन लगे कूकर दृष्ट न कबहू धरनी, सिंह दृष्ट होए गुरमुख करनी। गुरु प्रताप गुरु नानक प्रकाश, कूकर दृष्ट न कबहू धरनी, कुत्ते वाली दृष्टि नहीं बनानी। कि जी सिंह दृष्ट होए गुरमुख करनी, गुरमुख सिंह की तरह जिए। महाराज सानू समझाओ। उत्थे फिर सतगुरु कहंदे आ कि कुत्ते नू कोई वट्टा मारे, तुम पत्थर मार के देखो कुत्ते नू, दूरों मारोगे कुत्ता पत्थर अपने मूँह च पा लेगा, जिहड़ी चीज़ वजी उन्होंने पकड़ेगा। उन्होंने सोटा मारोगे वो सोटे नू डांग नू मूँह च पाएगा। कोई चीज़ जिहड़ी उन्होंने वजेगी वो सिर्फ उन्होंने देखेगा,
शेर नूं कोई वट्टा मार के देखे, शेर वट्टा नहीं मूँह च पांदा, वो कहंदा मारिया किन्ने है, वो कहंदा इनू छड्डो परां, ये वट्टा आ गया, पत्थर आ गया, ये कोई मेरे लिए अहमियत नहीं रखता, ये मारिया किन्ने, उन्होंने सोटा मारो, कदी शेर सोटा नहीं मूँह च पाएगा, जिन्हें मारिया उहदे हत्थां नूं पएगा। महाराज कहते मनमुख बंदे मिली कोई दात नूं मूँह च पांदे आ, ते गुरमुख वेखदा जिथों आउंदी पई मैं ध्यान उधर रखना है। फिर इस बेनती नूं मैं एक्सप्लेन करांगा इस गल नूं, कुत्ते नूं जिहड़ी चीज़ वजदी है, सोटा वजे, डांग वजे, जो भी वजे, वो ये नहीं देखदा मारन वाला कौन है, भेजा किन्ने, वो देखदा आई किहड़ी चीज़ मेरे नेड़े। पर शेर जिहड़ा है वो भेजन वाले वाल ध्यान रखदा है। गुरमुख बंदा संसार विच विचरदा है, ओहदियां दित्तियां दातां तत्त दे रूप विच होण, संसार दे दृष्टमान रूप च होण, वो दात नाल नहीं जुड़दा, वो देण वाले दाते दे नाल जुड़दा है। महाराज ने क्या पूजा अकाल की। मैं थोड़ा जिहा तां ये बेनती कीती जी, पहली गल तत्व पूजा तो आपां बचीए, उस तो अगली गल फिर असी लोग टाइम नूं पूजदे सन जी। याद रखो समय नूं पूजिया जांदा सी ते अज भी पूजिया जांदा है। ज्योतिषी अज भी पूजदे आ। साडे बंदे खिमा करियो, सिख जदों कोई कपड़े पा के हफ्ते बदलदा है ना, सारे तो नहीं पता जरूर लगता, चिट्टियां जराबां, चिट्टी पेंट ते चिट्टे बूट किसी ज्योतिषी को जरूर जाके आया होना। मैं सारे नहीं कहता, क्योंकि वो समय नूं पूजदे आ। थोड़ा जिहा इस गल नूं मैं फिर तुहानूं बेनती करा, मैं ईरखा च नहीं कुछ कह रहा, मेरी अज इच्छा सी गुरु ने मर्यादा की दी है। इधर बाबे शहीदां भी मत्था टेकी जाओ, तो शनिचरवार शनि देव दे भी जाके तेल की कैनी पावो, एक पासी रहो। मेरी बेनती है घर विच फिर असीं कहने सारे धर्म इक्को जिहे ने, वो गुरु गुनिया चेते रखो, धर्म तो दुनिया च है ही इको, सारे शब्द तो है नहीं। सर्ब शब्दंग एक शब्दंग जे को जानै भ्यो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। एक धर्म की है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। फिर इनू थोड़ा ध्यान नाल सुनियो। पहले समय विच समय नूं पूजिया गया, अज भी लोग टाइम नूं पूजदे आ। साडे हुण जदों असीं दिनां दी गल करने आ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का बहुत हिस्सा जिहड़ा वो टाइम के सरलेख थले, समय के सरलेख थले। जिवें दिन रैण 12 माह तो बाद बाणी आउंदी है। 6वीं सतगुरु अपना हर सिमरी दिन सब रैण, रैण दिन रैण है सरलेख, दिन रात टाइम के सरलेख। 12 माह 2 वारी आउंदा है समय का सरलेख। पहर आउंदा है, पहला पहर रैण के बन जा रहा मित्रा, समय का सरलेख। गुरमुखो रुत्तां हुंदियां ने, थित्तां हुंदियां ने, ये की है? ये सारे का सारा समय का सरलेख है। ये गुरु साहब ने क्यों किया, क्यों तर्क च नहीं ले जाना। हालांकि 12 माह पंजाबी साहित्य की एक बड़ी वड्डा खजाना है। हुण जदों तुसीं पढ़दे हो, असीं गल शुरू करिए समय तो। समा लोग पूजदे आ। हैरानगी की गल ये वे कि भारत वर्ष में जेडे असी दिन मानने, तुसीं अंग्रेजी वाले भी लै लो, संडे मंडे ट्यूजडे ये लै लो। दूजे पासे जेडे दिन असी कहने ऐतवार सोमवार मंगलवार बुधवार, भाई गुरदास साहब कहने मैं एक गल की समझ नहीं पैंदी, 7 वार बंदे ने बनाए, चलो इन्हां नाम मिथे, कहते 7 वारां दे 7 दे नाम ग्रहां दे उत्ते रख दिते, 7 विचों एक दिन भी परमात्मा के नाम ते नहीं। कोई है रब दे नाम ते दिन? भाई साहब का कविता है, आदित्य और सोम भूम, बुध हूँ बरहस्पत, शुक्र शनिचर, 7 बार बांट दीने हैं। मैं अर्थ दे थोड़े जे कर जाना। आदित्य का लफ्जी अर्थ है ऐतवार। उंज अंग्रेजी का जोड़ा है टाइम बनाया है, वो असीं कहने ऐतवार की छुट्टी। पर पूर्व विच जिहड़ा समा मिथ्या ना, जिन्होंने हफ्ता कहने 7 दिन कहने, ये हफ्ते का पहला दिन गुरु ग्रंथ साहिब ऐतवार है, जिन्हों आप रविवार कहने। ये पहला दिन ऐतवार है, जिहड़ा छुट्टी वाला दिन है। वह फिलासफी हो रही छुट्टी क्यों की, क्योंकि रब भी थक गया सृष्टि बना के, उन्हें कहा छुट्टी मारो, वो चल पिया। तुसीं अरब च जाओ, उस दिन जुमे की छुट्टी मिलेगी। अरब च ऐतवार की छुट्टी नहीं, जुमे की छुट्टी मिलेगी, शुक्रवार की। भाई साहब कहते हैं
एतवार ये किन्नू दे दिता जी? ये सूरज को दे दो, इसीलिए ये रविवार है, इसीलिए संडे है। ये एतवार जेड़ा सूरज दा है। आदित्य और सोम, सोमवार जे सूरज नूं दिता है तो फिर चंद्रमा नूं भी दिओ, सोमवार चंद्रमा दा है। अगे आ गया आदि सोम भूम, भूम दा अर्थ मंगल, मंगलवार मंगल ग्रह नूं दे दिता। अगे आ गया बुधवार बुध नूं दे दिता, बृहस्पति वीरवार बृहस्पति नूं दे दिता, शुक्र ते शनिचर 7 वार वंड दिते। भाई साहब कहते मैं लोगों एक गल दसो, रब दा वार किहड़ा रखिया जे? समा पूजिया ना। आदि तो सोम पोम बुध हूँ बृहस्पति शुक्र शनिचर 7 वार 62 दीने है। थित 15 थित्ता, एकम दूज तीज, थित पक्ष, पक्ष दर ते चानना पख ते हनेरा पख, वधी सुधी जिन्हों कहने ना। थित पक्ष मास रुत 12 महीने 6 रुतां। भाई जी कहते एक एक अंकार को ना को दिन दिन है। तू थित्तां वंड लियां, तू सदी वधी वंड लई, तू महीने वंड लै। वो बंदिया मैनू एक गल दस, जिस रब ने पैदा किया उहदे लई दिन किहड़ा कढिया? इहदा मतलब समा रब लई नहीं कढिया गया, बंदे दी सोच सी। उन्हें कीर्तन समय की व्याख्या की। आ देखो हुण ध्यान नाल सुनियो मेरी गल। जदों गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन करोगे, असी वार यही 7 वरतांगे। कमाल कर दी। गुरु ने कहा समय नू मत पूज, तू समय नू सफल कर, ते सफलता इहदे विच इस काल विच तू अकाल नू पूज। काल का मतलब तेन समा मिले इस समय विच। हुण मैं आपनू बेनती करा, 7 वार ने गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 वारी वार 7 हुंदे आ। एक गुरु अमरदास ने उचारे ने, सतगुरु तीजे पातशाह जी ने, एक भगत कबीर जी ने। एक एक तुक मैं पढ़ देना, ज़्यादा नहीं। हुण अपना एतवार की है? अपना तो एतवार हुंदा है छुट्टी वाला दिन है, 10 बजे तक सानू उठाओ कोई ना। अपना इस तरह मनाने इस सच्ची बीबियां हसदियां ने इस तरह ना। उंज तो वैसे जिन्ना बीबियां बाहर काम नहीं करना, जॉब नहीं करदियां, उंज ही महाराज की कृपा 8-9 बजे तक तो कोई हाथ नहीं ला सकता दरवाजे। होटलों वाले लोगों ने लोगो लाए अपने कमरे आगे, मैनू डिस्टर्ब ना करियो। हैं किड्डी हैरानगी की गल है गुरमुखो। अज कोई सवेरे ठांदा है ना, सवेरे ठा के साडा, मैं पिछली बारी कहा साडा कोई समा नहीं जी। मैं रात को 2 बजे अपना नितनेम करके पैना वा, क्योंकि मैनू पता मैं 12-13 घंटे गड्डी च मेरा शरीर साथ नहीं दिंदा। पर तुसी घरां च रहिंदे हो, मैं नहीं उठ रहा, पर सिद्धांत खंडन नहीं करांगा। मैं घर च रहिंदे हो, 9-10 बजे पै जाओ, 4-4:30 बजे उठ पवो। तो जिस बंदे ने 2 बजे तक फोन नहीं छड़ना, उन्हें काहदा जपजी साहिब पढ़ना है? फिर रौला पाई जाता, मन कोई नहीं टिकता। टिकना कित्थे वे होए? इन्ना जहर तां तू पहलां पा दिता, अंदर जो कुछ पाई बैठा है। अज छोटी तो छोटी उम्र च बच्चे खिंड क्यों गए? क्योंकि उन्होंने दृष्टि ने इन्ना कुछ अंदर गंद सट दिता, उन्होंने अंदर टिकदा ही नहीं पिया। ये एक कौड़ी सच्चाई है। तो वो पच्छम वाले ने काम कर दिता। इत्थे भावें कोई दिहाड़ी वाला है, भावें कोई टिक टिक सारा दिन। जिन्होंने बंदियां नूं फेसबुक के स्पैलिंग भी नहीं पता, वो भी चलाई जाते हैं। मैं एक ये हसन वाली गल नहीं जे, दुखांत जे साडा। क्योंकि मन दे विच 83%, 83% जिहड़ी अंदर अग लांदियां ने, वो अखां लांदियां ने। जो कुछ मैं देखा वो अंदर नूं मचाएगा, पर रब साडे ते भी तरस करे। मैनूं एक याद है अपने भाई हरबंस सिंह जगाधरी वाले, है तो व्यंगमई गल, आरे ला दिता ना लगे रहो। जिन्होंने कोई काम नहीं वो भी कम्मे लगे आ, सारा दिन फोन ते काम कोई नहीं। अगे औगण घट निकलता सी, अंदर तो सी, हुण औगण कड्ढण दे रस्ते बड़े हो गए। मैं सी इकट्ठे सी टोरंटो 96 की गल है। उन्हें गल सुनाई मजाक च, मैनू गल चंगी लगी। अज अर्थ मैनू समझ पै रहा। वो कहते सी सब्जी मंडी कीर्तन करते सन लुधियाने, गुरुद्वारा सब्जी मंडी हुंदा, बड़ी पुरानी स्टेज सी। वो कहते सी कथा अज आसा दीवार दे एक जथे करनी, दूजे ने करनी। कहते जी बाहर चाह पीण आ गए, शनिचरवार का दिन सी। तो वो कहते आ भी 2 मंगण वाले आ गए। वो रख के शनिचरवार सवेरे
कहता एक बंदा दोवें इकट्ठे हो गए रेहड़ी को आके, एक कहता मैं तेनों अज छनी है, तेन सेवा करनी, चाह पियानी, तो चवानी दी कप आउंदा सी चाह दा, उदों चवानी अज तो है नहीं ना, न्याणियां ते चवानी देखी 25 पैसे, वो 25 पैसे का आउंदा सी कप, एक मंगता दूजे नूं पकड़ी बैठा, उन्हें 25 पैसे का कप चाह का बनवाया तो एक मट्ठी दिती, कहना मैं तेरी सेवा करनी, तू पी, आप अगे निकल गया। भाई साहब कहते साढ़े मन च आया भी दोवें मंगते एक दूजे नूं जानते भी नहीं। कहते असीं जदों गुरुद्वारे गए तो कई दुकानां मंग चुका सी, तो उन्होंने पूछा भी तू उन्होंने चाह के पैसे दे आया, मट्ठी खवाया, तेरा कोई लगता? कहता लगता कुछ नहीं, मैं तो व्यापार किया है, जे पहला ये मंग जाता मैनू किसी नहीं सी देना, मैं उन्होंने उत्थे ध्याने लाया, तू चाह पी, उन्ने चिर च मैं दुकाना कढ़ के अगे निकल जाना, 35 पैसे लगे ने, मैं 2 रुपये कमा लेने। वो फेसबुक वाले चेते रखियो, तुहानू वो चाह का कप ते मट्ठी पकड़ाई हुई, सच्चाई है जी, कोई नेम नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई बंदगी नहीं। तो फिर फेसबुक के विद्वान भी वखरे ने, अपने घर बैठा भावें अपनी गली चौंके च हाकी खेड के खूंडी माँ का सिर पाड़ दे, स्वाद तो है बाहर मैदान में उतरे कोई। मैं मेरा विषय नहीं, पर मैं तुहानू बेनती करांगा, ऐतवार की व्याख्या गुरु कहंदा तू अकाल नू पूज, ऐतवार नू परमात्मा की भगती शुरू कर, आदित करे भगत आरंभ, ऐतवार नू भगती की आरंभता कर, काया मंदिर मनसा थम, जे अपनिया मनसा ते कंट्रोल करना, मन दे फुरनिया ते तू बंदगी कर, बंदगी थम की तरह ऐतवार तेनू अडोल कर देगी। अगे सोमवार सस अमृत झरै, वो सोमवार चंद्रमा का दिन है, सुने कि पूर्ण चंद्रमा होवे ते मणि वाला सप भी उन्होंने चटदा है। सोमवार बंदगी कर, रब मेहर करे तेरे अंदरों नाम अमृत झरन लग पवे। मंगलवारे ले महीप पंच चोर की जाने रीत, मंगलवार आया सारा दिन अपने मन उत्ते निगरानी रख कि तेरे अंदर केड़े वेले गंदे फुरने जाते हैं, तेरा मंगलवार मनाया जाएगा। मैं बेनती करा, इस तरह क्या कमाल कर दी बाणी ने। बुधवार बुध करे प्रकाश, बुधवार कहते खेड़े का दिन है, जे किते ऐतवार भगती करेगा, सोमवार नाम का रस आ जाएगा, मंगलवार तू अपने अंदर नू बचा लेगा विषयों तो, बुधवार तेरी बुद्धि च ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। बुधवार बुध करे प्रकाश, हृदय कमल में खरका बास, बृहस्पति बिख्या दे बहाए, शनिचरवार आ गया, ये वैगुरु वीरवार आ गया। लोग पहला इशनान नहीं सन करते भी अज वीरवार है, अज नहीं जे नहाना। जड़ा एक वधी बंदा भरम च पै गया ना, याद रखियो उन्होंने कढ़ना बड़ा मुश्किल जे। वो तो रोटी खाते हैं पुछते जोशी अज केड़ी रोटी खाईए। यही कारण महाराज जी ने कृपा की आनंदपुर साहब। आ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਆਪਾਂ कड़े पा के बैठे ना, अमृत संचार तो पहला आए सन एक ज्योतिषी साहब, उन्हें क्या महाराज तुहाडे ते तां साड़ सती है, साड़ सती तुहाडे ते। ते महाराज कहंदे ने भी किवें जा सकदी है? कह लगे एक तां लोहा दान करो, दूजे मां दान करो, मां दी दाल, तीजा तेल दान करो, ये सब कुछ दान चित करोगे, असी पूजा करांगे, साड़ सती हट जाएगी। महाराज ने क्या दे दियो जी। उन्होंने की किया जी, मां भी दे दिते, लोहा भी दे दिता, तेल भी दे दिता। वो लैके भर के खच्चरा बाहर निकलिया, सिख अगों टक्कर गया। उन्हें कहा भी किधर? कह लगे महाराज की साड़ सती उतारनी है। आ मां दे उंज खिमा करे, वो बाहर कोई नहीं आई, लंगर च वड़ गई गुरुद्वारे च, बड़ी मुश्किल निकलती है मां की दाल। वो मां की दाल लैके आ गया, सिखा रोक लिया। उन्हें क्या चल पर तेनों दसने तेरी साड़ सती असी लाने। महाराज देखना चाहते सन भी सिखा का जीवन कैसा है, किते भेड़ चाल तो नहीं करते, क्योंकि गुरु उस्ताद वो कोई भी परचा पा सकता है। वो नंगी किरपान लैके भी परचे पा सकते हैं, वो रात को भेख बदल के लंगर विच भी जा सकते आ। महाराज जी के सिखा ने रोक लिया। उन्हें क्या छड्ड परां सब कुछ। उन्नी देर नूं जी उन्होंने जिहड़े मां सन उन्होंने चक्की च पी के वड़े बना के तले, तेल वही पाया, समझो जिवें पकौड़े वधिया कढ़ के वो कल्पदा चला गया। कहन लगा महाराज तुहाडे सिखां नूं पता नहीं
कि मैं साड़ सती टालनी सी, ये तेल मांस लोया सब कुछ मेरे तो खो के लए, इन्ने देर नूं वड़े तल के लए। कहन लगे महाराज असी तेल विच साड़ सती नूं तल के रख दिता है, इहदा काम ही खत्म हो गया। महाराज खुश होए, कहन लगे खालसा जी शब्द कै सिखो मैनू ये आ सी। कहन लगे जिहड़ा लोहा है ना इनू ढाल के अपने हत्थां विच कड़े पा लो, अज तो बाद तुहाडे भरम दा नाश कर देवेगा। ये महाराज जी ने एवें नहीं सर्ब लो क्या वाहिगुरू जी। मैं आपनू बेनती करा, वीरवार आया, गल आपां करने पे पूजा अकाल की, विषय तो दूर नहीं जाना। पहला मैं तत्तां दा जिक्र किया, हुण समय दा कर रहे हैं। वीरवार आया, इशनान नहीं करना जी। महाराज कहते अज वीरवार इहो जिहा केसी इशनान भी कर ते बंदगी दा इन्ना इशनान कर, तेरे सिर दी मैल भी निकल जाए ते तेरे मन दी मैल भी निकल जाए। बृहस्पति विख्या दे बहाए, तीन देव एक संग लाए। अगे शुक्रवार आ गया, सुकृत सहारा, सो ये व्रत चढ़े। सुकृत दा अर्थ शुक्रवार, कई लोग शुक्रवार का वर्त रखते आ, तो मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा हो सकता संगत में भी बैठिया बीबियां होण जिन्होंने करवा चौथ के वर्त रखे होने आ। पति की लम्मी आरज़ू का सर्टिफिकेट नहीं प्यारे, इत्थे तो भरोसा ही कोई नहीं अगला साह आना है कि नहीं आना है। मैं फिर बेनती करांगा, शुक्रवार का वर्त एवे, जे तेरे नाल कोई वधीकी करदा अपने अंदर जरन की ताकत पैदा कर। जिदन तेनों जरन की ताकत आ गई ना, समझी तेरा वर्त सिरे चढ़ जाएगा। थावर, थावर दर ते शनिचरवार, थावर थिरका राख है सोए, जोत दी घटी जोत दी वटी घट में जोए। शनिचरवार दे दीवे बालन वालिया, शनिचरवार तेरे अंदर नाम दा दीवा बाल जाएगा। मैं आपनू बेनती की कि तुक तो क्यों सुनाई एक एक, ये 7 वारां च किते वार दी पूजा दसी, ये पूजा वाहिगुरू दी दसी है। इस तरह 12 माह है जिन्हों आप संक्रांत कहने, पर मैं कहना जे संक्रांत वाले दिन संगत आती है, जी सदके आए, कीर्तन होवे, पाठ होवे, बाणी होवे, उदन कोई संक्रांत नहीं पूजदा, इन्ने कट्टड़ ना होइए। उदन ओही संजोग हुंदा है, से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे। जे कहना पहले दिन झूठ नहीं बोलना, महीना चढ़िया जो पहले दिन करिए उस महीना होंदा, पहले दिन मत्था टेकना है, सारा महीना शुरुआत कर दी। हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च 12 महीनों विचों भाई साहब बैठा किसी महीने की पूजा कही चेत तो शुरू होंदा है। 12 माह एक प्रकरण सिर्फ चलता है दर्शना का, तो महाराज कहते चेत गोबिंद आराधिया होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम पना। 12 महीनों में सतगुरु इको प्रकरण रखते आनंद नूं। मेरे कहण तो मुराद तत्त की पूजा नहीं, समय की पूजा नहीं। तीसरी गल की पत्थर की मूर्ति पूजनी है, मूर्ति पूजा है नहीं। महाराज कहते ने पा खान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ, जे ए मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ। भात पैत अरलाप सी कर करा कासार, भोगन हारे भोग्या इस मूर्त के मुखशार। एक सवाल है, किसे क्या सी जी ये प्रमाण दे के कि पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। अगले प्रश्न पैदा किया फिर गुरु ग्रंथ साहिब नूं फुल क्यों देंदे हो, रज के खंडन भी करते हैं। तो कि यही है जिस पान को पाती तोरै सो पाहन नरजियो। पर मैं बेनती करांगा उत्थे नरजियो नूं सरजियो भेंट किया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब नरजियो नहीं, सतगुरु जागता है देव है। ये पत्थर नाल तुलना नहीं देनी। फुल सजावट नहीं लैके आया, फुलों नाल केवल थोड़ा उन्हें रीझना है। मैं बेनती करांगा जी इस तो अगली गल सुनियो, समय दी, तत्तां दी, दिनां दी, पत्थर दी। फिर महाराज पूजा किवें करिए असीं अकाल दी। अगला बचन फिर गुरु ने क्या परचा शब्द का। मैं आपनूं फिर बेनती करा, इत्थों तक सिखां विच देव पूजा नूं कोई थां नहीं। वाहिगुरू जी एक शब्द मैं आप नाल होर साझा कर देना। शब्द है भगत नामदेव जी का। जिहो जिह नूं पूजोगे ना उहो जो हो जाओगे। पूजा का एक विधान है, जिन्हों तुसी पूजदे हो जां उहदे वर्गे हो जाओगे ते जां उहदी सवारी बन जाओगे।
ये गुरु ग्रंथ साहिब शब्द होंदा भैरो भूत शीतला धावै खर बाहन ओशार उडावै हाँ तो एक रमैया लै हूँ। भगत नामदेव कहते ने परमात्मा जिन्ने देवते ने 33 करोड़ ने जिन्ने मेन तेरे ने मैं सारे देवते तेन दे दिते, मैनू ये बदले एक रब दे दे। ਇਹਦਾ मतलब देव पूजा ਨੂੰ कोई थां नहीं। हाँ तो एक रमैया लैखूँ आन देव बदलावन देखूँ शिव शिव करते जो नर त्यावै बरद चरै दौरू टमकावै माँ माई की पूजा करे नरसै नार होए उतरै तू कईयती आद भवानी मुक्त की बरिया कहाँ छपानी। गुरमत कहती है गुरमत राम नाम गौ मीता परनवै नामा इऊं कहे गीता। पूजना कहे सिर्फ एक परमात्मा। अगली गल सुनियो परचा शब्द का, क्योंकि वख वख होके दे अर्थ नहीं होणगे। अकाल दी पूजा शब्द के अभ्यास तो बिना नहीं आ सकती। जे शब्द का अभ्यास नहीं, मैं अकाल पुरख तो बिना किसी को नहीं मानता। इतों तक गुरु ग्रंथ साहिब कहते कई बंदे हंकार च कहते एको एक कहे सब कोई खौमै गर्भ व्यापे। हंकार च ही कही जाते उस अकाल पुरख तो बिना किसी को नहीं मानते। तो जपजी साहिब का पाठ कभी किया नहीं होंदा, 2 घड़ियां बह के कभी नाम तो जपिया नहीं। एक खौमे का प्रतीक बना के गुरु साहब ने बाणी च कहा एको एक कहे सब कोई खौमै गर्भ व्यापे। शब्द का परचा परिचय अभ्यास, इनू थोड़ा जहा बेनती ध्यान नाल मेरी सुनियो दोबारा। गुरमुखो शब्द की है, शब्द की है। गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा शब्द है, असी सारे कहने शब्द गुरु सुरत तुन चेला। उंज वैसे अर्थां दे हिसाब नाल पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द के अर्थ इको नहीं, शब्द बहु अर्थ विच वरत्या गया है। शब्द बहु अर्थां विच। पहली गल शब्द 6 कथावाचक सारे कहने 6000 शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब च, 6000 के करीब विच श्लोक सब कुछ। पर हैडिंग सरलेख सिर्फ 3 थावां ते 3 थावां तो बिना किते भी पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च सरलेख शब्द आए ही नहीं। इस गल नूं मेरी फिर ध्यान नाल सुनियो। गुरमुखो नाम ही समझ पाए ना, थोड़ा जिहा जोर दे के मेरी गल सुनियो। हुण उत्ते है जप जी साहिब जप पढ़ने हैं ना, असी पौड़ियां कहने हैं। उंज महाराज ने सरलेख कोई नहीं दिता पौड़ियां। हाँ तत्करे विच है जप निशान महला पहला कुछ बीड़ां च, पर सीधा है जप जी साहिब कहने हैं। उस तो बाद 100 दर की बाणी आउंदी है, पर उत्थे थोड़ा लिखा 100 दर के शब्द, सोहला साहिब जी के शब्द, गुरु नानक साहिब का शब्द असी वरतने। पर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द हैडिंग सिर्फ 3 बारी आया। मैं बेनती कर लगा परचा शब्द का। हुण पहली बारी आया मारू राग च। मारू राग शुरू होंदा है साजन तेरे चरण की होए रहा सदतूर नानक सरन तुहारिया पेखो सदा हजूर। हुण ये सलोक तो बाद होंदा शब्द। मैं इत्थे शब्द ही बोलांगा, सस्सा बब्बा ते दद्दा शब्द, उत्थे शब्द लिखे है। ते शब्द इहदा अगे जिहड़ा महाराज ने बचन किया कमाल कर दित्ती। कहने शब्द परमात्मा दा सदा है, पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले खेमे छत्र सरैचे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिनको सद मिले। ये थोड़े जे अर्थ मैं कर देना। पिछो राती सदड़ा महाराज गुरु नानक साहब बचन कर दिया। पिछल रात जिन्हों अमृत वेला आप कहने, चौथा पैर सुबह के हजूर कहते ने जेड़े बंदे अमृत वेले उठ के इबादत भी जुड़ते हैं वो सब तो पहला शुकराना ये करन, क्योंकि रब दे घर विच उन्हां नूं सदे पे ने ते शुक्र करन दाता तू सदा घलिया मैं अमृत वेले उठन लगा। सदे तो बिना उठ ही कोई नहीं सकता। मैं कई बार ये अर्थ करदियां कहना ये सदा शब्द साडे पंजाब दे कल्चर नाल जुड़िया। जदों घर विआह हुंदा है ना जी, तो पुराने समय से अजे पिंडां च किते है विआह वाले घर जदों किते बच्ची जां बच्चे दा आनंद कारज करना जां किसी दी मौत होनी ते लागण सदे देण जांदी सी कि अज इस घर विच बच्ची दा सुहाग गाया जाना है, क्योंकि वीरां दियां घोड़ियां गाउंदियां ने ते धीआं दे सुहाग गाए जांदे ने। तुसीं आयो बीबियां नूं कहना, सारियां बीबियां कोई कलाकार थोड़ा सन, आम घरेलू काम करन वालियां वो गाउण जांदियां ने
अद्धी रात तक गांदियां रहियां, पर जे एक गवांढण नहीं गई तो दूसरा महल्ला या पिंड दियां बीबियां पुछन तू अज रात गाउण क्यों नहीं आई, वो कहती आवाज़ तो मैनू भी आउंदी सी पर मेरे घर सद्दा कोई नहीं आया। सद्दे तो बिना कोई नहीं गा सकदा। गुरमुखो कई बारी गुरद्वारे नाल कंध सांझी होवे, जे सद्दा ना आवे लोग मत्था भी नहीं टेकण जांदे हुंदे। अमृत वेला रब दा सद्दा है। पहला शब्द महाराज ने वरत्या है सरलेख शब्द, पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले। पिछल रात सदड़े पैंदे ने, परचा शब्द का हुण शुरू हुंदा है। पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले, खसम दा नाम लेंदे ने, जिन्हों गुरु रामदास कहते ने गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ, हर नाम ते आवे, ये परचा शब्द का है। अभ्यास करदा पे शब्द का। फिर महाराज कहते जेड़ा शब्द नूं जपदा अमृत वेले, हुण तां चलो साडे कहंदे इन्ने शब्द पढ़ लै तैनूं आ मिल जाएगा इन्ने। मैं कि तुहानूं बेनती करां गुरमुखो, जिथे इश्क होवे ना उत्थे गिनतियां नहीं करी दी हुंदियां। व्यापारी गिनतियां करदे, इश्क वाले गिनतियां नहीं करदे हुंदे। सौदेबाज कढ़दे हुंदे आ, इन्ने मैं करांगा इन्ने मैं दे देखा, चलाण वास्ते अपना नेम बना लीए भी मैं इन्ना पाठ करना है, इन्ने अंग करना है, पर उस गिनती नूं परमार्थ विच इहदी की अहमियत जी। चलाण वास्ते मैं क्या, चलण वास्ते। हुण जे कहो जी मैं गिनतियां मिनतियां, जेड़ा बिल्कुल नहीं करदा उहदे नालों गिनती वाला चंगा जे। मैं अपनी गल खंडन कर रहा वैसे। हुण जेड़े बंदे ने कदी पाठ कीते ही नहीं, ओ दसो दी तुसीं गिनती दे 5 पाठक नूं पुछे तूं एक कीता, आप ना एक भी नहीं कीता। मेरी बेनती है, इश्क वाले गिनतियां नहीं करते, इश्क वाले लेखियां च नहीं पैंदे। महाराज ने क्या, जेड़ा आशिक है वो लेखे च नहीं वरतदा। मैनू याद है बुल्ले नाल कहानी जोड़ी सिख, कहानी जोड़ी मैं शब्द वरत्या कि दुध ही दुध पा रहा सी, जिवें अपने पिंडां दुध पाते ना, वो खुले भांडे दुध पा रहा तो सब नूं पुछ रहा भांडा लैके तू किन्ना दुध लेना है, सेर लेना है, अध सेर लेना है, इस तरह से वो दसदे ने, नाले पैसे देंदे ने, दुध ही दुध पाई जाता। इन्नी देर नूं एक बंदा आया, वो क्यू विच भी नहीं लगा, वो सीधा ही उहदे कोल आ गया, उन्होंने पुछया भी नहीं किन्ना दुध लेने, किन्ने पैसे दा। उन्हें भांडा दिता, उन्हें भांडा डबो के दुध विचों साफ करके बाहरों भांडा कहंदा ले जा। कहने बुला खलोता सी, कहानी है। वो जो वारी आई कहना मैं तो दुध तेन दसांगा किन्ना लेना है, पर आ मैनू दस, आ बंदा लाइन च भी नहीं लगा, कतार च भी नहीं लगा, तेरे नाल हसदा रहा, तू ये भी नहीं पुछया किन्ना लेना ही, भांडा डोब के दे दिता। वो दुध ही हस के कहंदा है मेरा यार सी, यारां नाल लेखे नहीं करीदे हुंदे। याद रखियो जदों गुरु नूं यार बना लीए ना, फिर लेखे नहीं। मैं आपनूं बेनती करा, एक शब्द पहली बार इत्थे आया क्योंकि शब्द परचा शब्द का। दूसरा अर्थ शब्द का आया जीवन। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, घड़िया जाता जीवन सच्ची टकसाल विच। एक शब्द अर्थ है मूँह का बोल, तिनका शब्द सच्चा है संवारिया आनंद साहब। एक शब्द अर्थ है अनहद नाद, अनहता शब्द वा जंत भेरी। एक शब्द अर्थ है बाणी सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक। में थोड़े जे अर्थ दिते आ, बेअंत बहु अर्थां च शब्द है। महाराज कहते परचा शब्द का। हुण इस गल नूं फिर मेरी नूं ध्यान नाल सुनियो भी परचा शब्द का परिचय अभ्यास क्यों क्या भी तुसी शब्द का अभ्यास करो, गुरमंत्र दा करो, मूल मंत्र दा करो, गुरु ग्रंथ साहिब दे के शब्द दा करो। उंज गुरमंत्र जिहड़ा है वो सवासां विच बहुत छेती चलदा है। मूल मंत्र फुरने के रूप चलता है, सवासां च दो हिस्सों च बहुत मुश्किल है अभ्यास करके चलाना। वाहिगुरु शब्द जिहड़ा है वो सच एवे कि अंदर धुर चलता है। मूल मंत्र का अभ्यास बनेगा तो साडा बेस बनेगा। कई बार अकला गुर मंत्र झलना बंदियां वास्ते मुश्किल हो जाता है। फिर बेनती जिन्हें निजी अभ्यास करना, मैं आपनूं बेनती कर लगा क्यों क्या कि परचा शब्द का। इस नूं थोड़ा जा मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनियो फिर दोबारा। शब्द का परचा क्यों? सब तो तेज़, पिछली भी क्या, सब तो तेज़ लाइट स्पीड है। आ सूरज की किरण आउंदी है ना, लाइट की रफ्तार सब तो तेज़ है, पर
दृष्टमान विच लाइट रोशनी की रफ्तार बहुत तेज है, पर अदृष्ट रूप विच जिहड़ा फुरना थॉट है वह सूरज की रोशनी नालों भी तेज है। ख्याल जिहड़ा है इहदा मुकाबला रोशनी कर जूगी। अजे रोशनी आउंदी नूं मिनट लगने ने ते फुरने ने तो कह दिता सूरज निकलता पिया जे। ख्याल है ना। मेरी फिर बेनती सुनियो, परचा शब्द का इन्ना, ये वैसे मैं 7 दिन कथा की सी बाहर, सिर्फ 3 शब्दों की पूजा अकाल की, परचा शब्द का। हुण ख्याल जिहड़ा है थॉट भी तो रोक ही नहीं सकता जी। तुसी बंदे नूं रोटी रोक दोगे, बाहर मुखी रोक दोगे, अंदर कमरे च उहनूं बंद कर दोगे तो ख्यालों नूं किहड़ा रोकूगा? ख्याल रोके जाते हैं? नहीं रोकते। ख्याल रोशनी तो कई गुना ज़्यादा तेज है। हुण इन्ने तेज नूं पकड़ेगा कौन? फिजिकल तौर पर नहीं फुरना कभी फड़िया जाता। फिजिकल तौर पर डांगा डूंगा मार सकने, तू आ काम किया अज तो बाद ना करी, ख्याल नूं किने कुट लेना है? आई गुरु ने इन्नी रमज पा दी हो। सिखो परचा शब्द का दा मतलब कि मन तो तेज गुरु का शब्द है। जिहड़ा शब्द का अभ्यास करेगा शब्द मन नूं कील के रख देगा, क्योंकि शब्द च ताकत है। अगली गल, जिदा शब्द है परचा शब्द का, जिदा शब्द है ओदे शब्द की एनर्जी जपन वाले दे अंदर चली जाएगी। इस गल नूं मैं रिपीट करना। एक बचन आउंदा फुने च महाराज जी का, वो बचन है मित का चित अनूप मर्म ना जानिए। यदा अर्थ है मेरे मित्र का जिहड़ा चित है ना वो उपमा तो रहे। तो मैं थोड़ा जिहा जोर जरूर लाना चाहना। परचा शब्द का कह मैं भी रहा, वो महाराज ने क्या परचा शब्द का। संत बाबा अतर सिंह महाराज लाहौर बैठे मस्तूवाने वाले, ये गल नूं जेन च रख के तुरियो, कमाइयां वालियां दी निंदिया मत करो। बड़े ने पखंडी, मैं कहना पखंडी उदों तो 22 सन, हुण ते पता नहीं गिनती नहीं किन्ने कु ने, 2200 ने। पर हाथ जोड़ के बेनती जे किते भी नकल है ना, एक गल जेन च रख के तुरियो, किते असल सी ते नकल बनी है। नकल कदी कली पैदा ही नहीं होंदी, वो असल विचों निकलती है। पर बदकिस्मती बंदा अकल च फस जाता है, नकल च फस जाता है। संत बाबा अतर सिंह होना जो तब्दीली लियांदी, वाहगुरू जी मैनू पता कई ने सुनना, घर सुचे होणगे बहुत कुछ, इस गल ही सुन के तड़पन लग पैना। उन्हें संत शब्द कह दिता जी। लाहौर बैठे सन, डॉक्टर गुरमुख सिंह ने शायद लिखा, वो कहते ने आया जी समाज सुधारक, मॉडरेट कह लो अज दा जी, तुसी पंथ बारे की कर रहे हो? बाबा जी कीर्तन करके हटे सन। उंज वैसे सच जे जदों कोई कीर्तन कथा टिक के करके हटिया होवे ना, प्लीज़ उन्होंने ना ही सवाल करिया करो, उस बंदे दा अंदर टिकिया हुंदा है। बाबा गुरबचन सिंह पिंडरां वाले कथा करते सन ना जी, कथा करन तो बाद वो बाहर नहीं सन निकलते, गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करके आधा घंटा चौरी करी जाते सन। इसदा मतलब सी कोई अंदर टिकिया होया है, पता नहीं किस बिरती ने मिल जाना है। टिके हुए 24 घंटे दे टिके हुए पानी विच एक कंक्रीट पत्थर सट दिओ तो पानी विच किन्नियां लहरां उठदियां ने। टिके हुए मन विच एक फुरना सट दिओ, इहदा हाल की होवेगा? सारा दिन कहना मेरा मूड खराब हो गया, अगला पूछे कलेश तो सवेरे पिया तो रात तक मूड क्यों खराब है? क्योंकि पानी दे विच एक पत्थर कोई समय लिए लहरां पैदा करता है, मन तो सारा दिन उस लहर च ही पिया रहिंदा, टिकदा नहीं। उन्हें पूछा जी पंथ दा, तो सच्ची मुची पंथ दा चाहिए। मैं फिर बेनती करांगा, मैं किसी सियासी जमात नाल नहीं, जिहड़े लोग अपने आप नूं पंथक शब्द वरते ना, वो ईमानदारी नाल पंथक बन के चलन। पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की रहेगी, पंथ ही ना रहा तो ग्रंथ को कौन मानोगा। पंथ शब्द बड़ा उच्चा है, भविख विच नज़र आ रहा है। एक तो घर दे खान लगे ने पंथ नूं घुण की तरह, घुण दिसदी कोई नहीं ना, घुण तुहानूं पता लक्कड़ नूं लगदी है। एक इहनूं खाण वास्ते कई मगरमच्छ मूँह वड्ड के खलोते हैं ते लालच दे रहे, तेनों आ देंगे, तेनों आ देंगे, तू साडे पिछे तुर। पर यह गल चेते रखियो,
शहीदां दे थां ते बैठे हाँ। मैं कदी भी नैगेटिव नहीं कथा की, मर गए हो डुब गए हो, ये तां मैं करा जे मैं मेरे मोढे नाल पंथ खलोता है। आ किसानी मोर्चा सियासी गल तो नहीं ना। 1 साल हो गया उत्थे बैठे, आपां भी गए सारे गए, इत्थे की भाना वापरिया? जो मर्जी कही जाओ, चेते रखियो ते कला वाहिगुरू जी की वरती है, वो शक्ति वरती है। तुसी सियाने बैठे हो, अरबापति बंदा 10 बंदियां नूं 100 बंदियां नूं रोज़ रोटी खवाउण दे संसे ने। याद रखो लखां बंदे रोटी रोटी खा रहे हैं, कौन खवा रहा है? ये गुरु नानक दी स्पीड लड़ रही उत्थे। बरीकी च देख के तुरो। मैं ये नहीं कि मैं सिख हाँ तो असीं अपने च बैठे अपने आप मियाँ मिठू बनीए। मैं आप नूं बेनती करांगा कि उन्होंने पूछा जी पंथ दा ते सच्ची मुच्ची पंथ दा भला मंगो। ये जथेबंदियां शहीदां दे खून चों निकलियां ने, ते मैनू भरोसा है कि जिन्ना मर्जी कोई दगेबाज धोखेबाज आ जाए, अखीर ते नरोल पंथ की जित होगी। मैं नरोल शब्द मेरा ध्यान च रखियो। मैं फिर अर्ज करांगा, सियासी शब्द नहीं करूँ। पूछा जी पंथ बारे, बाबा जी चुप सन। दूजी वारी बोलिया तो उन्होंने बड़ी निमरता नाल कहा, गुरमुखा सवेरे नितनेम कीता ही, नितनेम कीता ही। कहंदा असीं सेवा करने आ पंथ दी। उन्होंने फिर भी वजद च आ गए, कह लगे सुन मेरी गल पुरखा, जिदन सिखां दे खूहां च, उदों खूह सन ना, खूहां च अमृत वेले डोल दी आवाज़ आएगी इशनान करन दी, ते खूह तो अमृत वेले जपजी ते जाप दी आवाज़ आएगी ना, उस पंथ दा प्रताप इन्ना तेज होवेगा, दुनिया दी कोई ताकत नूं मिटा नहीं सकेगी। शब्द मैं फिर बेनती कर लगा, परचा शब्द का, शब्द कैवें? ये वाहिगुरू शब्द एवं है जी। ये वाहिगुरू शब्द मेरे गुरु नानक साहब दा कमाया होया शब्द है। एक कौडे दे अंदर जाएगा उत्थे भी फलीभूत होगा, ये सज्जन में जाऊगा उत्थे भी फलीभूत होगा। ਜਿਹੜੇ कमाए हुए शब्द हुंदे ने वो पत्थरां ते जम जाते आ। तुसीं पंजाब च देखदे हो, बोड़ ते पिपल दे पेडे इट्टां च पत्थरां च पैदा हो गया। क्यों हो गए? इमारत 500 साल पुरानी ते पिपल दा पेडा 2 साल निकलिया। क्यों निकल गया? इट विच क्यों जम गया? क्योंकि पंछी उस बीज नूं कमा के जदों अपने अंदर दी गरमैश नाल पत्थर ते सट्टेगा, उत्थे भी वो जमेगा। वो बीज कमाया होया है, सीधा नहीं जमेगा। मैं आपनों बेनती करा, गुरु साहब कहने परचा शब्द का, मित का चित्त अनूप सो मर्म न जानिए, गाहक गुणी अपार सो तत् पछानिए, चित्तै चित्त समाए। इस नुकते नूं सुनियो, 2 वारी आया चित्तै चित्त। ये तो आउंदा एक चित्त जा एक चिंत आयो गुरु गोबिंद सिंह, चित्त आवे उस पार ब्रह्म, मत देख भूलां विसरै तेरा चित्त न आवे नाऊं। पर इत्थे क्यों कह दिता चित्तै चित्त समाए तां होवे रंग कणा? इत्थे 2 वारी है चित्तै चित्त। इहदा अर्थ है अपने चित्त नूं गुरु दे चित्त विच समा दे। जदों तेरा चित्त गुरु दे चित्त विच चला गया ते गुरु दे चित्त दी ताकत तेरे चित्त विच आ जाएगी। इहनूं थोड़ा जिहा खोलण लई मैं फिर दोबारा एक उदाहरण देना। मैं अक्सर कहना सी बैठे हैं जिन्ने साडे चित्त किते ना किते जुड़े ने ना, जदों मैं बोल रहा इस वेले इस धरती ते किन्ने लोकां दे घर बच्चियां दा जन्म होया है 1 मिनट च, पूरे वर्ल्ड च होया है ना, ये सच्चाई है। ते 1 मिनट विच किन्ने मर गए हुणे दुनिया च? मैं कह रहा किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गोली वज गई, किसी के हस्पताल मर गए ना, सानू कोई खुशी हुई है? जम तो रहे ने ते मर भी रहे ने ना। असी खुश होया ना असी गमी च गए। क्यों? क्योंकि खुशी गमी ओदी प्रभावित करदी जिहदे नाल चित्त जुड़िया होवे। बच्चा प्रदेश बैठा बीमार है ते माँ हस्पताल इत्थे दाखिल हो गई, इनू की हो गया? क्योंकि जिहदे नाल चित्त जुड़िया सी उन्होंने दर्द हुई ते माँ दे अंदर बीमारी ने जन्म ले लिया। इसदा मतलब ओदे चित्त ने माँ दे चित्त नूं प्रभावित किया, तन नूं प्रभावित किया। जिहदे नाल चित्त जुड़िया होवे उहदा दुख ते सुख अंदर असर करदा है। और जिहदा चित्त गुरु दे शब्द नाल जुड़ जाएगा, शब्द की ताकत उस चित्त विच प्रवेश कर जाएगी। महाराज कहते चित्तै चित्त समाए तां होवे रंग घना। तेरा अंदर हो जाएगा जे तू शब्द नाल जुड़ेगा।
हाँ मैं एक बेनती आप नूं होर करदा जावां, तुसीं इत्थे आउंदे हो शहीदां दी थां ते। मैनूं अज बड़े फोन गए जी तुहाडे इत्थों तस्वीर बारे भी, ते आ एक गुरमुखा किसी ने दबके नाल लिखिया, हाथ ही जोड़ के क्या जिवें अपना मैं गल कीती प्रधान जी नाल केक कट्टण वाली है ना, क्योंकि हर किसी उंज मैं तुहानूं बेनती करां जी, जे गुरु की खुशी लैनी है सारे रहतनामे पढ़ लो। जिदन गुरु कर पुत्र हुंदा, जिदन गुरु खुश हुंदा, देग ही सिखां विच वरताई जांदी सी। रहतनामे कहिंदे आ इत्थों तक कि पंचामृत तुहाडे कथा कर देण गुरमुख ते इतिहास विच जदों भी किसी थां दी नींह रखी संपूर्णता हुई, उत्थे देग तैयार की जाती सी, सिमरन करके फिर उहदी अरदास की जाती सी। बाकी तुसीं सियाणे हो, रोक असीं सकदे कोई नहीं, साडे च किहड़ी ताकत असीं रोक सकीए। ते प्रबंधक भी कई बारी बेबस हो जाते हैं भी हुण बाबा जी का जन्म दिहाड़ा असीं केक कटना है, हाँ जी, कई पिजे कट्टन तुर पैंदे है ना है। वो तुसीं होर छड्डो, एक भाई रजिंदर सिंह कभी पुछो साडे गल एक होर स्यापा पै गया, सीधी गल। एक दी उम्र सी, ये भी जदों असीं कनेडा गए उम्र सी उहदी 85 साल, न्याणे कहण असीं एनिवर्सरी मनानी है तो भाई साहब कीर्तन कर, पापा ते मम्मी दोवें लावां लैणगे। भाई साहब आउणगे, कभी पुछो असीं दोवें सौ, तो मैं तो पहली तो गया, मैं फस गया। ये करन लग पे जे लोग असी जे वो भाई साहब ने ना की भी नहीं, मैं नहीं करना कीर्तन, वो न्याणे कहते सी तो वेखे ही कोई नहीं, उन्हें तुसीं पहला जम पैना सी वेखना सजे। मैं हासा नहीं गुरमुखो, जिहड़ी मर्यादा उहदी कोई नेम हुंदा है। ठीक है तुसीं बाबा जी की खुशी लिया रहे हो, इत्थे लंगर च देग कराओ, इत्थे लंगर जो मर्जी वरताओ, मर्यादा जिंदगी च भुल्लिओ ना। जेड़े बंदे मर्यादा की उलंघना करते हैं, मैं कोई शराब नहीं कह रहा, मर्यादा वाले उलंघना करने वाले छेती टिकते नहीं। मर्यादा के अर्थ की ने, मर्यादा के अर्थ की है? ये लफ्ज बने संस्कृत के मरिया शब्द तो, ते मरिया का अर्थ है कंधा किनारा। उंज मर्यादा का अर्थ है हदबंदी, रोक लानी, सीमा निश्चित करनी। मरिया का अर्थ है किनारे, जेड़ा पानी किनारियां भी चलेगा वो अपनी मंजिल ते पहुँचेगा। जेड़ा बंदा गुरु की मर्यादा नूं लैके चलेगा रब दे घर तक पहुँचेगा। जे आप तोड़ने ने किनारे फिर साड़ी मर्जी है। जेड़ी चीज़ बेमर्यादा हो जाए ना, क्योंकि कोई समय बाद मर्यादा बन जानी है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा, बामण मर गया कोई, ब्राह्मण में के लुकते नहीं गए, वो भोग वाला दिन सी, वो सारे वीर आए वो करन वास्ते, तो मुंडा कहता मेरे बाप की गति कोई नहीं होनी। कहता जी क्यों? कहता मेरा बापू जो पूजा करता सी पहला बिल्ली टोकरे थले दिंदा सी, जे पूजा करनी शास्त्र के विधान मुताबक बिल्ली दो टोकरे थले। वो सोची पै गया, विद्वान सन भी, असीं तो कभी पढ़िया कोई नहीं भी पूजा नाल बिल्ली का की संबंध, भी टोकरे थले बिल्ली देनी है। ਉਹਦੀ मां ਨੂੰ सुद्या बुजुर्ग सी, उन्हें कहा भी मुंडा रपड़ पाई बैठा है, भी अगां तां चलना, पहला बिल्ली टोकरे जो देंदे सन पंडित जी। वो बजुर्ग आई कह लगी से मेरे पुत्र नूं पता कोई नहीं, जो पूजा करते सन तो मिठा भेंट करते सन, चूहे घर च बड़े सन, बिल्ली चूहियां पिछे भजदी सी। उन्हें कहा पहला टोकरे च इहनूं दिओ, चूहियां पिछे नहीं भजेगी, खड़ाका नहीं होवेगा। वो मर्यादा बन गई ना। मैं तुहानूं बेनती करां, हड़ दा पानी नहर विच सूबे विच ते खाल भी चलेगा तो फसल चंगी होवेगी। जे खड़ दा पानी बेमुहारा हो जाए तो उजाड़ के चला जाता है। अग सिलेंडर चो पाइप विच निकल के चुल्हे विच रेगूलेटर राही मर्यादा विच आएगी तो रोटी पकेगी। जे किते सिलेंडर मर्यादा तोड़ दे तो घर दे जी भी मर जाते होंदे आ। तुहाडी मेरी बॉडी है ना, एक सैल बेमर्यादा हो गया तो कैंसर नूं जन्म दिंदा है। सिखो ईरखा च ना जाओ, गुरु की मर्यादा नहीं कदी टप्पी दी हुंदी, पर तुहाडा कसूर कोई नहीं। मैं तुहानूं भी सच्ची तुहाडी भावना है ना भी शरधा असीं बाबा जी की खुशी लैनी है, पर मैं फिर भी बेनती करांगा, क्योंकि मैनूं संगत ने कहा तो मैं भाई साहब नूं कहा भी मैं दबके च नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ के बेनती, बाकी तुसीं सियाणे हो। हुण शहीदां भी इस तरह हुंदा है, ये मसले वैसे प्रचारक दे नहीं कल्ले हुंदे। हुण इन्हां कल नूं प्रबंधकां दी गल च साफे पा लोगे भी भाई साहब आ कहे गए। हाँ, अथॉरिटी गल करे, सिंह साहब गल करन,
ये मसले उन्हां दे हुंदे आ, पर साडा चलो काम असीं पहरा देना हुंदा इस चीज़ ते। मैं आप नूं फिर बेनती करांगा कि शब्द अभ्यास जिहड़े सज्जन शौक रखते आ, मैं अभ्यास करना है महीने च एक दिन कढ़ के देखो शब्द के अभ्यास लई। 5 बाणियां दा नितनेम कीता, ठीक, उठे सवेरे घंटा सिमरन ते लाया, पूरा एक दिन ला के देखो। जिस कमरे च अभ्यास करना है, हठ नहीं मैं कह रहा भी जरूर चौंकड़ी मारना है, शरीर थक जाए मंजे ते लेट जाओ, नींद आउंदी है सौ जाओ, कुर्सी पई है सोफा पे बैठ जाओ, अपने खाण जोगा थोड़ा बहुत अंदर रख लो, 24 घंटे शब्द नूं जप के ना फिर पुछो मन की हालत की है। क्योंकि मन बड़ा चला के कहता नितनेम 45 मिनट चौन लगा निकलीए, वो गुटके चो नितनेम करता, चेते दुकान नूं करता जो फलाने नाल सौदा होना है। इस तरह ही है ना, क्योंकि मन नूं पता है कि 45 मिनट बाद मेरा खैड़ा छुट्टन वाला है। तो जो 24 घंटे अंदर बंद करके रखांगे ना गुरमुखो, उंज तो वैसे महाराज कहते उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम। शब्द का अभ्यास ज्यों ज्यों आप जी शब्द का अभ्यास करोगे गुरमुखो, शब्द का अभ्यास अंदर दी मैल दियां जड़ां पट के रखता है। हाँ, उस तो बाद तुसीं काम करदियां बैठे उठिया गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं मेरा सिद्धांत है पूजा अकाल की, परचा शब्द का, अभ्यास शब्द का करना है, बाणी का करना है। हुण तीसरा शब्द वरत्या दीदार खालसे का। दीदार खालसे का किन्ने कमाल का शब्द है, क्योंकि अखां चाहदियां ने किसी रूप नूं देखना। महाराज गुरु गोबिंद सिंह बचन कर दिया कि खालसे का दीदार करो, खालसे विच मैं हाँ। पर फिर बेनती, खालसा कौन? नाम तखल्लस नहीं, केवल खालसा ओ जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह कहते जागत जोत जपे, अखीर ते वे जोत जगे है, जपेगा ते जगनी है। जागत जोत जपे निस बासुर, निस बासुर एक बिना पूजा काल की, एक बिना मन नैक ना आना, एक तो बिना दूजे नूं अंदर थां ना दे। पूजा जगदी जोत दी करे। जागत जोत जपै निस बासुर एक बिना मन नैक ना आना, पूर्ण प्रेम प्रतीत। आ लफ्ज बड़े कमाल दा, प्रीत ते प्रतीत। कई बारी प्रीत हो जाती है, प्रतीत कोई नहीं आती, ना प्रतीत होवे ते प्रीत टुट जाती है। पूर्ण प्रीत प्रेम प्रतीत सजै, फिर की करे ब्रत गोर मड़ी मठ भूल ना माने, कबरां नूं ना मन्ने, मड़ियां नूं ना मन्ने। हाँ, पर एक मैं बेनती करांगा, तू गुरु ग्रंथ साहिब नूं मन, शब्द नूं मन, पर किसी दी नरादरी ना करी। ये मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। उंज ये अजकल ज़्यादा है जी, क्योंकि नौजवान पीढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा एजेंसियां, हो सकता कोई बंदे विच भी बैठे होणगे, एजेंसियां निशाने लैके तुरदियां हुंदियां ने। काफ़ी ज़्यादा जवानी जिहड़ी पंजाब विच, साडे हरियाणे च नहीं हो जाए जी इन्ना कुछ। तुसीं राजपुरे तो शुरू होवो ते अमृतसर दी नहर तक जिन्नियां प्राइम लोकेशन ने सारियां थावां ते कबरां बणियां होईयां ने, तो थोड़े थोड़े समय बणियां ने, हरियां चादरां पाईयां ने, ते कई थां ते एडे एडे वड्डे डेरे ने जिथे गायक नचदे आ। ते मैं एक दिन कहा सी, गायक अपने नचन कुदन की व्याख्या करन, गुरबाणी की व्याख्या ना करन। उन्हां दे वस दा रोग नहीं बाणी की गहराई नूं जान सकना, क्योंकि जिदे पिछे लोग यादे लग जान भरम हो जाता मैं कुछ बन गया हाँ। देखो महाराज कहते वर्त ना रखे, हाँ रखना है तो इंद्रियां दा वर्त रख। प्रेम समार्ग च रखिया है, प्रेम समार्ग ग्रंथ पढ़िया होना कि सजना, अखां दा वर्त रख। अज चल भी बाजार विच मैं किसे नूं वेख के गंदा फुरना नहीं बनाना, रखिया जाऊगा वर्ते। कन्नां दा वर्त रख, गंदन वैन नहीं सुनने। जीभ दा वर्त रख, मैं कूड़ नहीं बोलना। महाराज कहते पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा, जेड़ा प्रतीत नाल जींदा है इकल्ला रह जाएगा, पर कदी वो भेड़ चाल पिछे नहीं जाएगा। आ तुहाडे गढ़ शंकर दे भाई तिलका जी, जिन्होंने आम तौर पर भाई तिलकू जी कहते हैं जी, भाई तिलका जी कल्ले सिख, उत्थे एक जोगी ने चलीया कटिया जी,
तो उन्हें कह दिता जिहड़ा मेरे दर्शन करेगा ना जी उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो अजकल सिखां च भी चलदा इस तरह। एक बंद मैं ही बैठा तो मेरे को आई जाओ, तेरे न्याणा होवेगा होवेगा होवेगा। चलो 100 आए ने 10 तो होगा ना, जिन्हें 10 होगा उन्हों का मैं गुरु हाँ। वो 10 100 होर लैणगे उन्होंने 10 बंदा पक्का हो गया। नहीं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है शब्द के दायरे चो निकलो तो अग लग जाएगी। राम घर ने वो भाई तिलकू जी सारा इलाका आ गया जी इकट्ठा होके भी जेड़ा जोगी जी के दर्शन करेगा उन्होंने स्वर्ग मिलना है। वो पूछता कोई रह तो नहीं गया स्वर्ग तो बिना, कहते ने भाई तिलकू नहीं आया। उन्होंने बुलान गए भी चलो जी स्वर्ग लेना है, तो वो कहते स्वर्ग साडी मंजिल ही कोई नहीं। जिस थां नहीं जाना मैं राह क्यों पूछा। अड़ गया जी उस परचा शब्द का सी, उहदे कोल बाणी का प्रकाश सी। जोगी ने देखा भी कोई मंग नहीं होती, फिर जोगी आप तुर पिया। कहता चलो वो नहीं दर्शन करना होंदा, आप ही दर्शन दे आने। उन्होंने पता लगा, उन्हें बूहा मार के अंदरों बड़ा ताला मारिया। कहता मेरे घर ना बड़ी तू। वो कह लोग चेले चाटड़े सारे जी करो दर्शन, देखो जी तुसी बेअदबी कर दी, जोगी जी दे अपमान किया। उन्होंने कहन तू बूहा खोल दर्शन कर। वो कहना रब दा वास्ता जे दी कमाई है मैं दर्शन करके स्वर्ग च नहीं लटकना, मैं अकाल पुरख दे घर भी जाना चाहना, मेरी मंजिल नहीं। संतन 2 इरादे रद्द कर देते। अखीर तो वह सिदक वेख के जोगी कहता ओए सिखा मैं तेनू दर्शन देन नहीं आया, तेरे दर्शन करन आया हाँ। वो गुरु अर्जुन देव जी दे कोल लै गया उन्होंने। मैं आपनू बेनती करांगा कि दीदार खालसे का क्या, खालसा कौन? पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मठ भूल न मानै, तीर्थ दान दया तब संयम एक बिना न एक पछाने गुरमुखो, पूर्ण जोत जगह कट में, जिदे अंदर रब दा नाम दी जोत जग पै। पूर्ण जोत जगह कट में तब खालस ताहें निखालस जाने। इत्थे एक उदाहरण मैं होर दे के, क्योंकि भाई साहब ने टाइम काफ़ी लम्मा कह दिता, मैं हुण सिर्फ मिनट 5 तुहाडा भी सबर नहीं परखना। एक मैं बेनती करांगा प्रोफैसर पूरन सिंह नूं जिहड़े पढ़दे ने सज्जन, क्योंकि प्रोफैसर साहब नूं पढ़न वास्ते बहुत लतीफ अकल चाहिए है, बरीक बुद्धि चाहिए है। प्रोफैसर पूरन सिंह उन्हां दा एक लेख है, तुसीं पढ़ियो। वो लेख है कलगी वाले दी छवि, जरूर पढ़ियो। ये जिहड़े सज्जन सिमरन करते आ उन्होंने कमाल कर दी। दीदार खालसे का कहना मेरे मन च आया मैं ना गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर बनानी, चित्र बनाना है। वो ख्याल देखो, वो कहता मैं सतलुज के कंढे बह गया, सतद्रव दे, तो मैं उत्थे बह के तस्वीर बनावा रंग भरा, तो शाम नूं जदों सूरज विच वेखां ते नाल ही पानी विच प्रवाह कर दिया। नहीं ये अकाल दे सुत दी फोटो नहीं बनी। दूजे दिन फिर बनावा, फिर रोड दिया। ख्याल कर रहा है, कहता मैं रोज़ बनावा सतलुज प्रवाह कर दिया। एक दिन मैं कल्प गया, मैं क्या सतलुज तू ही बोल होए, तेरे विच कलगी वाला किन्नी वारी आर पार होया। जदों तेरे च प्रीतम लंघदा सी उहदे चेहरा किहो जिहा सी, मैनू दस मैं उहदी तस्वीर बनानी चाहना, उहदी छवि। कहंदे ने असलीयत ये सतलुज चुप सी। थोड़ा जिहा गुरमुखो एकाग्रता बख्शियो। सतलुज चुप सी, खामोश सी, कुछ नहीं बोलिया। कहंदा मेरे मन च आया कि मैं यमुना जाके पौंटा साहिब दी यमुना नू जाके पूछा, तेरे किनारे तां कवि दरबार सजदा सी। उत्थे कहंदे ने जदों मैं गया उहदी मूर्त बनाना ते कवि दरबार दा जलो देखना चाहना, पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप जी एकाग्रता बख्शियो गुरमुखो कि कलगी वाले जी दे तो जमुना भी कुछ नहीं बोल रही। कहंदा मैं पटने दी गंगा नू पुछया, वो भी कुछ नहीं बोली। अखीर ते मैं क्या गोदावरी नू पुछीए, उत्थे गए, कहंदे वो भी कुछ नहीं बोली। अंदरों आवाज़ आई, तू गुरु ग्रंथ साहिब अगे खलो, ये दसणगे कित्थे है। गुरु गोबिंद सिंह की छवि। कहंदे ने मैं गुरु ग्रंथ साहिब अगे खलोता, आवाज़ आई
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੋਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਤ ਨਿਸ ਅਰ ਭੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ